why this prediction model is so much important. This model is referred as a TDM, or we can call that a travel demand modeling, or we also call that the regional transportation forecasting model, or we sometimes call that conventional model as well. In the second slide, you guys will understand that why we call it the conventional model. But first of all, to understand the travel demand modeling, the travel demand modeling is basically a set of mathematical representation or relationship through which we describe the three whys, such as when, why, and how people and goods move with or without geographic area. So that geographic area could be a city, that could be a CBD, which we call the Center Business District, or that could be any province, or that geographic area could be country as well. So to understand and predict the supply and demand for travel in an urban area. So this is the main purpose of a travel demand modeling. So for the purpose to predict the the demand and the supply, as well as the capacity of the networks. When we talk about networks, so we doesn't mean a specific mode. We would like to refer it to the bus, metro rail, or the commuter rail services. So far, is it clear? Any question? Okay. Now we will understand now again what is travel demand modeling, what is forecasting, or what is prediction modeling. So keep in mind that this is a process which we use to predict the travel behavior. Travel behavior while considering the future demand, as well as the land use, as well as the trip makers which actually attract or might be distract the passenger and travel, and which also could focus on the nature of transportation system as well. The four-step model is a trip-based model, which is actually used to predict the regional travel demand modeling. The first three steps, starting from trip generation, trip distribution, model split, is actually a model which is used to estimate the demand for travel. While the fourth one, to which we call the trip assignment, is actually consist with the travel supply when the trips are loaded with one or more than one transportation networks. We will go in a detail to the each and every one, and we will also understand that how trip is generated, how trip could be distributed, and how the model split plays its role and what is traffic assignment. Okay. But first of all, you need to understand that this model is called the travel demand modeling, or the four-step model, through which we predict the forecast, through which we can forecast, we can predict. But how we can predict? How we can predict the trip generation, how we can predict the distribution factor, and how we can consider the model split. So you need to understand that if the input way, or through which we can consist or component of travel demand, we have so many other factors, such as what we need the land use data, because of course without input data we cannot predict any model. The next part is about the travel generation factor, so which will mainly talk about the parameters and relationship, trip types, and how the sensitivity of time and cost could affect or observe or increase or might be decrease the travel generations, and what is the fraction of distance, and how we can calibrate all those factors together. If there is any questions so far, so you can ask at any time. Okay. Next part is about the inputs.
When we talk about the input, because for example, if you want to predict any model, if you don't have the inputs parameter, if you don't have the models, if you don't have the output, because without those three indicator or component, we cannot predict the travel model. So you need to understand the first factor is about the socio-economic data. When we talk about the socio-economic, we are basically referring toward the population or might be the jobs or might be the job opportunity in creations. Okay, in as well as what sort of available jobs are located within that CBD area. From now on, we will also use that the few synonyms, or you can call it the keyword such as CBD or TAD. So when we talk about TAD, TAD means traffic analysis zone, where we would like to predict something, or when we talk about uh, the CBD, which is the Central Business District. So where all those activities could happen, okay? The next part is about the highway and transit networks. When we talk about the transit networks, here we are referring towards the metro services, the bus services, that how we can merge all of them together to compute the different route choices, the different route selections. Okay, so those are the input parameters, which is basically reject. So the next part is about the model. When we talk about the model, basically those three are the component through which or on the basis of which we basically design the travel demand model. The next part is about model. So we have the two parameters. The one is parameter and what is its relation. So means why people make trips. For example, on Saturday, on every Saturday, you are supposed to travel from Peshawar, from Islamabad, from Lahore to Haripur. So this is your parameters relationship that you only would like to go to Haripur. And what is your purpose? Because you want to be there for the official gatherings, might be educational purpose, might be kind of a recreational purpose, might be research activities, and so on. Next type is the trip types in sensitivity choice in the constraint to consider time and cost. When we talk about the trip types, trip means so here we are referring towards different type of a trips. So when I'm going somewhere to home to work, so this is basically H2W. When I'm going from work to home, so this is WH. Another is TAD. When I'm going from home to job, so this is home to job base. So trip types means we are basically considering that from what is your origin. Origin is a place from where you are about to start the trip. Sensitivity choice means that how you can come up with consideration to select a time and cost. Okay, so let me ask a very simple question from four of the available candidate. For example, if we talk about time and cost, okay. Okay, Gulbuddin, could you tell me, for example, if there is a availability of a mode from Peshawar to Haripur, you are supposed to reach to Haripur within 2 hours, but that through that mode you can reach within 3 hours, but it's economical. So would you consider that mode to travel, Gulbuddin? Yes, sir. First, we have to see the economy, sir. Very good. Economy plus Uh, time. okay, Faraz. अगर आप फॉर एग्जांपल पेशावर से हरिपुर आना चाहते हो और आपके पास एक मोड है जिसकी कास्ट कम है लेकिन टाइम ज्यादा ले रही है तो क्या आप इस मोड को सेलेक्ट करोगे फराज? यस सर सर टाइम को हम ज्यादा तवज्जो देंगे सर। ओके, गजनफर सिलेक्शन आपका क्या अच्छी है। ख्याल है? ओके, गजनफर आपका क्या ख्याल है? सर सर टाइम को हम तवज्जो देंगे।
टाइम बचे तो इकोनॉमी फिर कमाई जा सकती है। हसन, आपका क्या ख्याल है? हसन, आर यू देयर? ठीक है। अच्छा, फराज, गजनफर, जहां पे आप लोग कंसेप्चुअली नहीं समझे ना, वो मेरा एक पेस्ट जाता रहता है वो तो फिर आप लोग मुझे रोक दीजिए कि सर यहाँ पे हम लोग फंस गए, या ये हम ये पॉइंट थोड़ा सा एक दफा फिर से भी एक्सप्लेन करें, ठीक है ना? तो आप लोग फिर मुझे बताते जाइए। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास वो किस तरह का मॉडल है जिसको हम लोग सेंसिटिविटी मॉडल बेसिकली कहते हैं, जिसके जरिए हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम और कास्ट बेसिकली ये दो वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम रख के उनके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कभी पेशावर के अंदर ये जो हमारी कार पुलिंग सर्विसेज है, या जिसको हम लोग शेयर्ड टैक्सी कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कारखानों से बिठा के आपको फिरदौस चौक तक, या इवन गुलबहार तक, या इवन आपको मेन जनरल बस स्टैंड तक आपको लेकर आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल, इफ द टाइम इज काइंड ऑफ वेरी लिमिटेड एज कंपेयर टू BRT, एज कंपेयर टू योर पर्सनल कार, अगर आपका टाइम कम लग रहा है वहां तक पहुंचने में और कॉस्ट भी कम है, तो ऑफ कोर्स आप BRT को की कंफर्ट की बजाय आपका टाइम भी कम लग रहा है और आपके पैसे भी कम खर्च हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, BRT में आप कारखानों से जनरल बस स्टैंड तक आपको ऑलमोस्ट एक घंटा 10 से 15 मिनट आपको लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसी शेयर्ड सर्विस के थ्रू आना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम 25 से लेकर 30 मिनट लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा, मैं तो बेसिकली फिर क्विक मोड को कंसीडर करता हूँ। और दूसरी बात ये कि तकरीबन 50 से 60 रुपए कारखानों से 80 रुपए 80 रुपीज आपसे ले लेते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ट्रेवल थ्रू BRT तो फिर आपके 50 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 से लेकर 30 रुपए का फैक्टर आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपकी टाइम जो है वो सेव हो रही है। लेकिन अगर आपके साथ एक आपका दूसरा दोस्त है और फॉर एग्जांपल इफ ही इज देयर इन पेशावर फॉर ए रिक्रिएशनल पर्पस, वो घूमने फिरने के लिए आया है, तो फिर उसके लिए टाइम और कास्ट ये दोनों फैक्टर नहीं है। वो जस्ट साइटिंग करना चाहता है, शहर को देखना चाहता है, तो फिर उसके लिए BRT इज द बेस्ट मोड। ये जो वर्ड आया है ना सेंसिटिविटी चॉइस का, तो ये यूजर टू यूजर डिपेंडेंट होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अर्ली मॉर्निंग में किसी भी शहर में आप किसी भी मुल्क में आप चले जाएं तो वहां पे बहुत एक्सट्रीम लेवल की कंजेशन होती है, रश होती है। उसका बेसिकली पर्पस वो रीजन ही बेसिकली यही है कि अक्सर लोग जाना चाहते हैं ऑफिस की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्व्ड डेटा। अब ऑब्जर्व्ड डेटा से मुराद क्या है? देखो, इनपुट पैरामीटर आ गए, मॉडल आ गया। ऑब्जर्व डेटा से मुराद ये है, ऑब्जर्व डेटा से मुराद बेसिकली ये है कि फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन वो हमें बता देगा कि एक सिटी के अंदर इतने टोटल जॉब क्रिएशन के प्लेसेस है। फॉर एग्जांपल 100 फर्म्स जो है वो काम कर रहे हैं, तो अक्सर लोग जो है, अगर 100 कंपनीज है और एक एक कंपनी में आप लोग इज्यूम कर ले कि 50 अवेलेबल सीट्स है, पोजीशंस है, तो मतलब ये है कि कम से कम 5000 लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो आपके मॉर्निंग में 5000 का इजाफी एक ट्रिप इन लोगों का मखसूस तौर पे जो वर्क टू होम ये जाना चाहते हैं, तो ये इनका ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज करना है एज अ प्लानर। अब प्रैक्टिस पूरी दुनिया में कौन सी हो रही है कि वहां पे हेडवे का निजाम है। गुलबुद्दीन, क्या आप बता सकते हो हेडवे किसको कहते हैं? हेडवे, गजनफर, हेडवे किसको कहते हैं? हेडवे, एनीवन? गजनफर, हेडवे किसको कहते हैं? हेडवे, सर पता नहीं है, नहीं पता। फराज? सर एक मोशन की बात कर रहे हैं कि हम जब फॉरवर्ड मोशन करते हैं उसके पर्पस से इस्तेमाल होता है। इतना आइडिया नहीं है सर, लेकिन गुलबुद्दीन, आप बता सकते हो? ठीक है,
हेडवे एक आपके ट्रांजिट जो आपका बस है, बीआरटी है या ट्रेन है या कोई भी आपकी सर्विस है, एक के जाने से लेकर दूसरे के आने तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग हेडवे कहते हैं। तो ये हेडवे जो होती है, फॉर एग्जांपल पूरी पूरी दुनिया में ये इस तरह की एक काइंड ऑफ फिक्स होती है कि 8:10 पे आपका पहला आपका बस आएगा, 8:20 पे नेक्स्ट, 8:30 पे नेक्स्ट, 8:40 पे नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पे जो है ना सेंसिटिविटी चॉइस, इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। इसको हम बढ़ा किस तरह रहते हैं। अगर आपको पता है कि 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आपके साथ लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और फिर 9 बजे के बाद तादाद कम हो जाती है, तो फिर हम हेडवे में क्या करते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ बसेस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बजाय कि बस हर 10 मिनट के बाद आ जाए, वहां पे हम ये मतलब देख लेते हैं कि हर 3 मिनट के बाद आ जाए। लेकिन अब ये हमें कौन बताएगा, अगर एक बस में मान लो कि आपकी कैपेसिटी 50 लोगों की आ सकती है, अब कितने टाइम में कितने लोग एक स्टेशन पर आ सकते हैं फ्रॉम दैट जियोग्राफिक एरिया, जिसको हम लोग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या सिटी या पॉपुलेशन या कोई भी एक रीजन हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये ऑब्जर्व डेटा जो है ये हमें प्लानिंग कमीशन से ही बेसिकली मिलेगा। प्लानिंग कमीशन हमारे पास वो कमीशन होती है जो इस तरह के इनपुट्स पैरामीटर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फराज, जिस तरह आप अभी डैम बना रहे हो, ये डैम की लोकेशन, इसका फ्लो, इसका आउटफ्लो, इसमें इनफ्लो कितनी आएगी और इसका कैचमेंट एरिया का डिजाइन करना, ये सारी चीजें आपको फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट्स के एनालिसिस करके PC1 करके उनके बाद उन लोगों ने ये सारी चीजें डिजाइन की है। लेकिन ये जो डेटा है इनके पास कि यहाँ पे अगर हम डैम बना दे तो इन इन इलाकों को हम बचा सकते हैं और यहाँ पे हम इतना पानी जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम लोग फिर बाद में दूसरे पर्पसेस के लिए भी बना सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ऑब्जर्व डेटा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप कोई भी प्रिडिक्शन मॉडल रन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। रिस्पॉन्ड करें आप लोग, रिस्पॉन्ड करें। हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, थर्ड हमारा आ जाता है आउटपुट। देखो, इनपुट का प्रिडिक्शन मॉडल हो गया, मॉडल भी हो गया, अब थर्ड हमारे पास एलिमेंट आ जाता है आउटपुट का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो नेटवर्क ये रेल का भी हो सकता है, रोड का भी हो सकता है, हाईवेज की भी हो सकते हैं, सेकेंडरी रोड्स भी हो सकते हैं आपके, इसके अलावा आपके एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं। नेटवर्क वॉल्यूम ऑन ईच लिंक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक सिटी में 100 आर्टीरियल नेटवर्क या मेजर नेटवर्क या सेकेंडरी नेटवर्क आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनकी एक कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी हम किस तरह यूजुअली निकालते हैं, जितना आपका डिस्टेंस होता है उसमें से हमारे पास एक व्हीकल की, अब यहाँ पे HTV का एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है, LTV का एक स्पेसिफिक है, विथ स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी के और दूसरे के बीच में जो हमारे पास एटलीस्ट 1 मीटर का जो स्पेस हमें चाहिए एटलीस्ट कंजेशन के दौरान, उसको कंसीडर करके हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया में 1 घंटे में या 1 मिनट में कितनी गाड़ियों का हुजूम, इसको ट्रैफिक की टर्म्स में प्लाटून कहते हैं, प्लाटून, ठीक है, कितना प्लाटून वहां पे रुक रहा है और ये प्लाटून कितना एक्सटेंड कर रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। 1 मिनट में वो प्लाटून की जो लेंथ थी वो 300 मीटर थी, फिर दूसरे मिनट में वो 500 मीटर हो गई, 20 मिनट के बाद वो 2 किलोमीटर तक वो प्लाटून चला गया। इसका मतलब ये है कि आपके जितने नेटवर्क हैं, जितने रोड्स हैं आपके, वो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटेटेड हो गए हैं। जो आपने मतलब अगर एक लेन में एक गाड़ी जा सकती है और एक रोड के अंदर आपके 3 लेन्स है, तो मतलब यह है कि 1 किलोमीटर में आपके अगर 150 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, तो 1 किलोमीटर के फासले पे आपके साथ 150 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 450। तो अभी ये हमारे पास एक रोड नेटवर्क की कैपेसिटी हो गई।
क्लियर हो गया ना? ये हमारे पास वो आउटपुट पैरामीटर्स है जिसके जरिए हम ये निकालना चाहते हैं कि एक नेटवर्क का वॉल्यूम कितना है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट आप टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है मैट्रिसेस ऑफ ट्रैक्स, जिसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन किसको कहते हैं? जहां से आप जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, राइट? इस्यूम कर ले कि अगर हमने एक सिटी को 100 जोन्स में डिवाइड कर दिया, 100 जोन में या 1000 जोन में, और एक जोन की मैक्सिमम लेंथ 500 मीटर आप लोग इस्यूम कर ले, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बेस हूं, जो आपने प्लानिंग की है पूरी सिटी की, तो जो आपने प्लानिंग की है 1 से लेकर 100 जोन्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं गुलबहार के इलाके में रह रहा हूं और वो उस इलाके को आपने जोन नंबर 50 फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, और मेरी जॉब पोजीशन है यूईटी पेशावर में या अब्बासीन यूनिवर्सिटी में या सीकॉस में या इकरा में या कुर्तबा में, राइट? और वो जोन आपका है जोन नंबर 90। तो इसका मतलब यह है कि मेरी ट्रिप अब यहां पे बन रही है फ्रॉम जोन 51 टू जोन 90। अच्छा, अब इससे हम निकालना क्या चाहते हैं? बेसिकली हम ये निकालना चाहते हैं कि आपका ट्रेवल पैटर्न क्या है। आप मंडे टू फ्राइडे, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अपना पैटर्न बताता हूँ, मंडे टू सैटरडे मेरी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक सेम पैटर्न है। यूनिवर्सिटी टू टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, टीआईपी, टीआईपी और फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टीआईपी, टीआईपी यूनिवर्सिटी। एक्सक्यूज मी। सैटरडे और संडे को फिर मैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल हाइकिंग के लिए एबटाबाद, हवेलिया वगैरह वगैरह XYZ के इलाकों में मैं जाता हूँ। तो ये मेरी ट्रिप की मैट्रिसेस होगी, जिसके जरिए अगर कोई भी प्लानर होगा उसको ये आइडिया होगा कि ये इंडिविजुअल्स जो है, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एक सर्वे वाले, ये जो लास्ट पॉइंट था मॉडल के अंदर ऑब्जर्व डेटा, अगर सर्वे वाले आ जाते हैं, ये जिस तरह हमारे घरों में मर्दमशुमारी होती है कि फॉर एग्जांपल खानदान में टोटल अफराद की तादाद कितनी है, मर्द कितने हैं, खवातीन कितनी है, बच्चे कितने हैं, और उनका रोज़े माश क्या है, रोजगार क्या है, कहाँ से वो कमा रहे हैं। अच्छा, वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका जो अर्निंग पॉइंट आ गया वो आपका माश का इस्लामाबाद आ गया। सिमिलरली ऑब्जर्व्ड डेटा होती है इंस्टीट्यूट के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर लोग चले जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप अपने घर से अपने काम तक किस तरह आप सफर करते हो, आइदर थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हो, आइदर थ्रू इन योर पर्सनल कार आते हो, या फिर आइदर आप थ्रू कार शेयरिंग, कार पुलिंग, या जिसको हम लोग मिक्स कंसेप्ट भी कहते हैं, उसके जरिए आप आते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। सर थोड़ा सा ये ऑब्जर्व डेटा के बारे में बता दे सर। हाँ हाँ, कुलबुद्दीन, ऑब्जर्व डेटा वो डेटा है जो हम लोग, ये बेसिकली प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी कि फराज अभी डैम फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट? तो अब ये डैम इस तरह तो नहीं आया ना कि किसी एक डिपार्टमेंट ने कहा कि बस आप लोग यहाँ पे एक डैम बना दें। तो उससे पहले लैंडस्लाइड्स हुई थी, फ्लड आया था, जिसकी वजह से जितना भी कैचमेंट एरिया था वो बेसिकली सफर हुआ था। तो ये लोग, डैम बेसिकली है क्या? एक अपस्ट्रीम पे हम बंद टाइप का एक हम लोग बांध लेते हैं, जिसके जरिए हम वाटर की फ्लो को बेसिकली रोकते हैं। लेकिन ये डेटा जो हमारे पास आया है, तो इसके इसके अंदर मेट्रोलॉजिकल, जिसको हम लोग मौसमियात का डिपार्टमेंट कहते हैं, उन लोगों ने ये डेटा उनको प्रोवाइड की होगी, और वो डेटा उनके पास आखिरी कम से कम 20 से लेकर 50 साल का, मतलब 2 to 5 डिकेड्स होगा, जिसमें से उन लोगों ने रेन की इंटेंसिटी, रेन फ्लो, रेन की कैचमेंट एरिया और उसका लेवल, और उसकी ओवरऑल रेनफॉल की कितनी मिलीमीटर में, में उसने उस इलाके को घेरा था। तो ये सारी चीजें हमारे पास बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से होके आती है। उसके बाद फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट ने या यहाँ की इंतजामिया ने ये फैसला कर लिया कि अगर इस
इस एरिया को हमने बचाना है, या फॉर एग्जांपल वी वुड लाइक टू प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ ए वाटर फॉर द इरिगेशन पर्पस, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। तो ये इलाका, ये पॉइंट तो लोगों ने, डिजाइनर्स ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सेलेक्ट किया है। सिमिलरली ऑब्जर्व डेटा में हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि अगर मिस्टर एक्स है, वो हर रोज बेसिकली अपने घर से लेकर अपने काम तक किस तरह सफर करता है, तो इसमें हम वो डेटा कंक्लूड करना चाहते हैं जिसको हम लोग, जो हम लोग यूजुअली निकालते हैं थ्रू हाउस होल्ड सर्वे। और लेकिन आजकल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी ये एक चीज नोटिस की है कि जब हम YouTube में चले जाते हैं तो जितनी आपने लास्ट एक महीने में सर्च की हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स हो, इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स हो, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, कोई भी मतलब क्रिएशन के प्रोग्राम्स हो वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें आपके सामने एक रिफाइंड होके डायरेक्ट पॉप करके आ जाती है। तो ये वो कंसेप्ट है जो आपका डेटा ऑब्जर्व करता है और आपको वही चीजें आपके सामने डिस्प्ले होके आ जाती है। और आजकल जितना भी ऑब्जर्व डेटा हमारे पास आ रहा है वो ऑलमोस्ट आपके सेल फोन से आ रहा है। तो आपका जो सेल फोन है, इसमें जितनी आपकी कम्युनिकेशन, अच्छा एक दो दफा मैंने प्रॉपर्टी वालों के साथ बात की, आप लोग यकीन करें गूगल में जब मैं सर्च करता था तो मुझे जितनी भी बहरिया के, मल्टी गार्डन्स के वगैरह वगैरह, इन सब के एडवर्टाइजमेंट आने लगे। तो अब उनको किस तरह पता चला कि फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो ये आपके कीवर्ड्स होते हैं जिनको कॉपी किया जाता है। गुलबुद्दीन, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, और किसी का अगर कोई सवाल हो यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फोरकास्टिंग अप्रोच में। ये हमारा था कंपोनेंट। अब हम लोग बात करेंगे डिमांड फोरकास्टिंग अप्रोचेस के बारे में। यहाँ पे दो मेन टर्मिनोलॉजी की हम बात करेंगे। एक है आपके सिटी सेंटर में, सिटी सेंटर से होके उसके एंड तक जो आपकी सिटी की कैचमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है आपका इंटरसिटी ट्रेवल फोरकास्ट। अर्बन ट्रेवल डिमांड फोरकास्ट से मुराद ये है कि वो लोग जो सिटी सेंटर के करीब या वहीं पे उनके जॉब्स पोजीशन है या नंबर ऑफ ट्रिप्स है, तो वो ये हम निकालना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइम में, एक स्पेसिफिक डे पे, एक स्पेसिफिक जगह पे जाना चाहते हो। तो ये अर्बन ट्रेवल डिमांड फोरकास्ट का मतलब है। इंटरसिटी का मकसद ये है कि वो आपकी पॉपुलेशन जो रहती है इन टर्म्स ऑफ अर्बन स्प्रावल में, अर्बन स्प्रावल किसको कहते हैं, वो कंसेप्ट या वो पॉपुलेशन जो हमारे सिटी के कैचमेंट से बाहर रहती है और वो विदाउट प्लानिंग होके रहती है, तो उनका सिटी के अंदर आना हर रोज, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और उनका एवरेज पर मंथ इनकम कितनी है, और कितना ट्रेवल टाइम उनको चाहिए, और कितनी कास्ट आप उनसे ले रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेवल डिमांड फोरकास्ट फॉर दी इंटरसिटी सर्विसेज। एक हो गया अर्बन का और एक हो गया इंटरसिटी का। अब मैं आप लोग को एक मॉडर्न कंसेप्ट आजकल बताता हूं। 2011 में अगर आपकी ट्रेन या अगर आपकी रिहाइश विद इन सिटी सेंटर हो, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद का जो इनर पार्ट है वहीं पे आप अगर रहोगे, तो आपका रेंट, आपके ऑफिस का रेंट वगैरह वगैरह अखराजात और बढ़ जाते हैं क्योंकि वो सिटी सेंटर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड में आप रहते हो तो आपका रेंट, ऑफिस का रेंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। तो सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन में हम ये एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका वर्क स्टेशन या आपकी लिविंग विद इन सिटी सेंटर में है तो फिर आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ा सा साइड में है, क्योंकि आप सिटी सेंटर पे इजाफी डिमांड जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पे जैसे जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनके जो सिटी सेंटर के, जिसको हम लोग सेंट्रल हब भी कहते हैं, वहाँ के जो पॉइंट्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियाई मॉडल।
न्यूक्लियाई, मतलब एक एक पॉइंट के अगर आप 3 से 4 डिफरेंट जोन्स बनाते और उनकी ओरिजिन और उनकी जितनी भी फैसिलिटीज है उनको आप डिफरेंट लोकेशन पे आप फैसिलिटेट कर दें। मतलब यह है कि एक सिटी सेंटर ना हो, 4 से 5 सिटी सेंटर। तो ये हम फोरकास्टिंग अप्रोच के जरिए। अच्छा, एक चीज आप लोग समझ ले, हम लोग बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहे हैं, फोरकास्टिंग, अंदाजा लगाना। ये वो तरीका है जिसके जरिए हम लोगों ने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, लेकिन थ्रू कंप्यूटर, थ्रू मॉडर्न सिमुलेशंस, थ्रू एल्गोरिथम, थ्रू हमारे होमवर्क पे, ऑब्जर्व डेटा पे, हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि आज से 10 सालों के बाद, 50 सालों के बाद क्या डिमांड होगी, कहाँ पे, कौन से सिटी में। जिस जो आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन 1 और 2 में, जोनल एनालिसिस में या जोन एनालिसिस में, या आप लोगों ने अर्बन प्लानिंग में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जोनिंग के नाम से। तो ये बेसिकली उसकी तरफ हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे मॉडलिंग की। ठीक है, ये 3 टाइप्स के मॉडल है। एक को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक मॉडल, एक है मेसोस्कोपिक और एक है माइक्रो सिमुलेशन। अब तीनों में फर्क है। ठीक है, फर्क आप लोगों को ये मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक मैंने पहले भी पढ़ाया था। किसी को याद है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो सिमुलेशन या मॉडलिंग? किसी को भी? हसन, आर यू देयर? हसन, आज गुलबुद्दीन, Yes, sir. आप बता I'm सकते हो? here, sir, listening. हाँ बताओ ना, मैक्रोस्कोपिक में और माइक्रोस्कोपिक में क्या फर्क है? गुलबुद्दीन, आप बता सकते हो? गजानफर, आप, फराज, कोई भी, एनीवन? अच्छा, एक दफा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देख लीजिए, ये इस तरह की चीजें हैं जो आप लोग के साथ आगे जाने वाली है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग सीरियस ले लें, वरना फिर आप लोगों को अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज का भी आइडिया नहीं होगा फिर मुश्किल हो जाएगा। मैक्रोस्कोपिक, इसको हम लोग स्टैटिक मॉडलिंग भी कहते हैं। स्टैटिक मॉडलिंग इसको हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल पैटर्न या फिर ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में रिलेशन निकालते हैं। मतलब यह है कि इसको हम लोग एक बहुत बड़े लेवल से देखते हैं, प्लानिंग लेवल से। इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक जो आप लोग को मैंने पढ़ाया था, उसका मतलब बेसिकली ये था कि जब हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं और ग्राउंड पे ये एनालाइज करते हैं कि एक ओरिजिन से एक डेस्टिनेशन तक आपका कितना ट्रेवल लॉस्ट हो रहा है, कितनी आपकी टाइम डिले आ रही है, कितनी इसके साथ साथ आपका जो जिसको हम लोग कहते हैं एमिशन लेवल आपका बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह से ओरिजिन से डेस्टिनेशन में 10 किलोमीटर का फासला आपको तय करना चाहिए 10 मिनट में, लेकिन अगर वो फासला आप फॉर एग्जांपल कवर कर लेते हो विद इन 40 मिनट में, तो यहाँ पे आपकी ट्रेवल टाइम कितनी आपकी बढ़ गई, ट्रेवल डिले आपका कितना आ गया, कितने आपने एक्स्ट्रा एमिशन परसेंटेज आपने जनरेट कर दी, और कितनी आपकी जो कॉस्ट इकोनॉमिकल थी उसको आपने कितना उसको एक्सपेंसिव वे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये माइक्रो हो गया। चलो, ये फिलहाल टॉपिक नहीं है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक वही है कि जो हम लोग ऊपर से देखते हैं प्लानिंग लेवल्स पे, जिसको हम लोग स्टैटिक मॉडल भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एवरेज कंडीशन निकालना चाहते हैं एक डे के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। मेसोस्कोपिक किसको कहते हैं? मेसोस्कोपिक वो मॉडल या वो पैरामीटर है जिसको हम लोग डायनामिक मॉडलिंग भी कहते हैं। डायनामिक मींस विद पैसेज ऑफ टाइम, जो चेंज होती रहती है। इसको हम लोग वेरिएंट या वेरी मॉडल भी कहते हैं, जो मतलब चेंज होते रहती है। इसमें हम लोग कंपोनेंट कौन सा लेते हैं? टाइम का कंपोनेंट लेते हैं मेसोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, इसके जरिए आपके पास जितने भी ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, उनको कुछ मतलब इन चीजों का आइडिया होता है, सच एज कंजेशन आपकी कितनी है,
आपका क्यू, आपका प्लाटून, ट्रैफिक प्लाटून जैम का आपका कितना बढ़ रहा है, ठीक है, कितनी आपकी जैम आती है इन पीक आवर्स में, और आपकी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन की नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी आपको बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो ये हम लोग निकालते हैं मेसोस्कोपिक मॉडलिंग में। लिख लिया ना आप लोगों ने? इसके बाद फिर थर्ड लेवल पे आता है हमारे पास ट्रैफिक माइक्रो सिमुलेशन का, ठीक है। जिस तरह आप लोग इस कोर्स में पढ़ रहे हो ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक था आपके प्लानर एंड डिजाइनर लेवल पे, मेसोस्कोपिक था आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के लिहाज से, और जो आपका ट्रैफिक माइक्रो है ये है ट्रैफिक इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 लेवल है मुख्तलिफ मॉडलिंग के, पैरामीटर्स के, क्योंकि हम सारे एक सिस्टम का हिस्सा होने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने इंडिविजुअल एंटिटी के अंदर हमारी पहचान जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को कहूं कि मेरी स्पेशलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक में है, तो वो फिर मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे कौन से, मतलब कौन से मोड में या स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है, वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली ट्रैफिक माइक्रो सिमुलेशन से मुराद ये है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एक रोड और एक जंक्शन पे, या किसी भी जंक्शन पे जिसको हम लोग एज अ केस स्टडी एरिया कंसीडर कर दें, आपकी इंडिविजुअल व्हीकल की और पेडेस्ट्रियन का ट्रेवल बिहेवियर कैसा है। तो ट्रेवल बिहेवियर को, आपके क्यू मॉडल को, और आपके डायनामिक और स्टैटिक मॉडल को, जिसके जरिए हम एवरेज पीक कंडीशन निकालते हैं, इन सब को मिला के हम लोग एक मॉडल बनाते हैं, जो हमारा ये बेसिकली 3 लेयर सिस्टम या 3 लेवल ऑफ मॉडलिंग इसको कहते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मैक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक और ट्रैफिक सिमुलेटर। आगे चले जाएं या बस ये आज के लिए काफी है? गुलबदीन, सर हसन, ये लेवल जरा बता दे दोबारा सर। अच्छा, ये आप लोग डिटेल जो है ना, डिटेल आप लोग यहाँ पे आप लोग सीखोगे। ये नेक्स्ट स्लाइड में एक एक को फिर हम लोगों ने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, फर्स्ट है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक मॉडल। मैक्रोस्कोपिक को हम लोग स्टैटिक मॉडल भी कहते हैं, जिसके जरिए हम एवरेज कंडीशन ऑफ अ डे या किसी भी एक दिन का पीक पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में हम लोग मेनली ट्रेवल पैटर्न को लेते हैं, और ये हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में रिलेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से जो आपके स्टेशन है वहीं से, या जो आपके नेटवर्क्स है, या जो आपकी रेल की नेटवर्क पट्टियां जो आपकी बिछी हुई है, उनका और ट्रांसपोर्टेशन का आपस में रिलेशन क्या है। क्योंकि हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं ट्रेवल पैटर्न। अगर एक रूट पे आपको 1 मिनट में 3 दफा गाड़ी फॉर एग्जांपल भेजनी पड़े फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, क्या आपके नेटवर्क में इतनी विदहोल्डिंग कैपेसिटी है? क्या वो इतना फैसिलिटेट कर पाएगा? इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक मॉडलिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे आता है मेसोस्कोपिक। मेसो को हम लोग डायनामिक कहते हैं, जिसमें कंस्ट्रेंट या पैरामीटर हम लोग लेते हैं टाइम का, जो हमारे पास वेरी होता रहता है। क्यों? अब यहाँ इसकी जो करेक्टरिस्टिक आप लोग अगर देख ले, क्योंकि इसमें हम लोग क्यू निकालना चाहते हैं, ट्रैफिक जैम्स निकालना चाहते हैं, कंजेशंस निकालना चाहते हैं, ताकि हम लोग ये बता सके ट्रांसपोर्टेशन प्लानर के कि इस स्पेसिफिक रूट पे आपकी ट्रैफिक की करेक्टरिस्टिक ये है। आपको कंजेशन का सामना इतना पड़ रहा है, मतलब हर एक रोज हो रही है, या पीक आवर में आपकी ट्रैफिक कंजेशन, टाइम लॉस्ट, ट्रेवल डिले, एक्स्ट्रा माइलेज वगैरह वगैरह, ये आपकी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद फिर आ जाता है ट्रैफिक सिमुलेशन। ट्रैफिक सिमुलेशन में हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल व्हीकल का, उसको आप इन टर्म्स ऑफ पेडेस्ट्रियन भी ले सकते हो, उसका, और ट्रैफिक, ओवरऑल ट्रैफिक के निज़ाम का, जो आपका आपके रोड्स आपके बने हैं, आपके जंक्शंस बने हैं,
उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो ट्रैफिक माइक्रो सिमुलेशन में हम एक बहुत छोटे लेवल से शुरू करते हैं। मेसोस्कोपिक में विद इन ट्रैफिक के अंदर जितने इश्यूज आपके आ रहे हैं उन पे फोकस करते हैं। मैक्रोस्कोपिक को हम लोग बहुत ही एक मैनेजमेंट लेवल से या एक टॉप लेवल से या एक सिस्टम लेवल से देखना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का आपस में रिलेशन क्या है। लेकिन इसकी डिटेल